Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session, we have gone through how to synchronize a particular audio with the video, how to add markers, how to add effects on particular beat, what kind of effects we can create. So now moving one step further, we are going to discuss about sound designing. How sound design is going to impact on your visuals. As we all know that if we try to remove the audio from a particular video, it will somehow will create a very negative impact on a particular audience. So good sound design is very much important for a video to create an impact, to create emotion, and to connect with your audience. So good sound designing includes a lot of things. For example, if I'm going to start with any kind of project, let it be a advertisement, let it be a short film, let it be a feature film. So there are certain sounds which we require for a particular video. There are dialogues. Sometimes we use the original dialogues and sometimes we add dubbing for that particular dialogue also, right? We add some voiceover, then we always try to add some music which can add depth to a particular video. So like the other audios, like the we have voiceovers, we have the dialogues, we have the background music, we have ambient ambience music, right? That is the atmospheric sound of your particular video. So whatever environment you are right now, right, a particular sound should be related to that particular environment. For example, if my character is standing near to the bus stand or to the railway station, then there has to be some noise of the local buses, local vehicles, or trains moving around, right? So that is your atmospheric sound, that is your ambient sound. Along with that, we have some BGMs that is your background music, in which we actually get to know, okay, this particular BGM is related to this character. So whenever that background music is being played, we will get an idea that okay, now this particular music is related to this character. So this character is going to get introduced, right? Or we are discussing or talking about that particular character. Along with that, we have certain sound effects, we have foley, right? So foley is actually the art of creating, sounds by using day-to-day objects. So there is a possibility that whenever you are capturing a particular sound, right, you might not get the accurate level for that particular sound, or you might not get the exact sound. There might be some disturbance in that particular audio, which we could correct in the post also. But we use Foley for recreating all those particular sounds which are there in your particular video. So why do we need to arrange all these different kind of audios in a separate layer, right? So let's assume that I have two characters, right? अब वो दो करेक्टर जो मेरे हैं आपस में बात कर रहे हैं, there could be any kind of emotion in that scene, and while capturing that particular dialogue, there is a possibility कि हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड में किसी तरह की नॉइज आ जाए, हो सकता है कि नियर बाय जो लोग हैं उनकी जो ऑडियो है वो वहाँ पे ऐड अप हो जाए। उसके साथ साथ हो सकता है कि कोई नॉइज जैसे कि विंड की नॉइज हो सकती है, या फिर कोई स्टॉर्म हो सकता है, या फिर नियर बाय कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कई बार वाटर फ्लो हो रहा है, कुछ भी।
तो वो नॉइज भी इन बिटवीन अगर आपके डायलॉग की आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से हम उसको फाइनल आउटपुट में ऐड नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे दोबारा से डबिंग वगैरह करवाते हैं, राइट। देन जो भी आप म्यूजिक आप ऐड कर रहे हो, राइट, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा वो पर्टिकुलर म्यूजिक मेरे डायलॉग को ना ओवरलैप करे। अगर मेरे डायलॉग की जो क्लैरिटी है वो खत्म हो रही है मेरे म्यूजिक को ऐड करने से, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे अपने म्यूजिक के जो लेवल्स हैं वो एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर recording each and every, or we could say that adding each and every audio clip separately in a separate layer so that we can adjust it accordingly. And sound designing is the most important part of the video editing process because it can actually create a great impact, or it can actually create a very negative impact also, right? Because your audio is the backbone of your particular video, राइट। अभी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हॉरर फिल्म है, तो हॉरर फिल्म में आपने देखा होगा कि मोस्टली आपके साउंड के साथ ज्यादा प्ले किया जाता है। एक्शन सेम रहता है बट उसमें जो साउंड हम यूज करते हैं, जो कई बार बैकग्राउंड नॉइज होती है, कुछ साउंड इफेक्ट्स होते हैं, दे एक्चुअली ऐड मोर डेप्थ इनटू इट। अगर वहीं पे अगर मैं साउंड चेंज कर दूं तो हो सकता है कि मेरे पूरे के पूरे सीन का मतलब ही चेंज हो जाए। So that is what we are going to do in this particular class also. So if you can see here that I am having one particular clip. अब इस particular clip को एक बार हम playback लेते हैं. So right. So यहाँ पे मेरे पास एक clip है जहाँ पे as such मुझे कुछ idea नहीं है कि क्या हो रहा है, right? क्या स्टोरी टेलिंग है इसमें, राइट। बिकॉज स्टार्टिंग में एक मेरे पास सिंपल सिटी का शॉट है, आफ्टर दैट मेरे पास एक स्ट्रीट का शॉट है, then I have this one particular character who is sitting in a cafe and typing something on her laptop. Then we have another shot of a person who is looking at his laptop, right? Again coming back to this particular shot and switching in between. So now what we are going to do is we are going to create a sound design for this particular scene. अब sound कितना important है and कैसे साउंड को चेंज करने से हमारे जो सीन का पूरा मतलब चेंज हो सकता है, राइट। सो अगर मैं अपने पर्टिकुलर वीडियो में साउंड को मैनिपुलेट कर दूं या फिर उसको चेंज कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी और पर्टिकुलर ऑडियो के साथ, देन हमारे जो सीन का पूरा मतलब चेंज हो सकता है। सो दैट इज व्हाई साउंड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट and how sound can play with the emotion of a person, right? So let's start by adding some sound in this particular clip. तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ मैं यहाँ पे अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स लेके आ चुका हूँ। सो लेट्स ओके, देन यहाँ पे हम एक म्यूजिक ऐड करते हैं। तो एक बार इसका प्लेबैक लेते हैं हम। को यहाँ तक ट्रिम करता हूँ। अभी आप सुन सकते हो कि जस्ट मैंने यहाँ पे एक सिंगल ऑडियो ट्रैक ऐड किया है एंड सिंगल ऑडियो ट्रैक ऐड करने के बाद आप देख सकते हो मेरे इस पर्टिकुलर सीन को एक मीनिंग मिल चुका है, राइट। पहले क्या था कि बिना ऑडियो के जब हम सुनते थे तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा कि मेरे इस पर्टिकुलर शॉट में क्या इमोशन है, क्या डिपिक्ट कर रहा है वो,
ये सीन किसके बारे में है, क्या चल रहा है इस सीन में। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर सीन में सिंपली एक सिंगल ऑडियो ट्रैक लेके आता हूँ, देन आप देखो कैसे पूरा का पूरा एक इस सीन को एक न्यू मीनिंग मिलता है। अब इस पर्टिकुलर ऑडियो के साथ अगर मैं अपने सीन को दोबारा देखूं, तो हमें यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि हमारे इस पर्टिकुलर सीन में इमोशन क्या है, कि इट्स अ लवली डे, आपका दिन शुरू हो रहा है काफी अच्छे म्यूजिक के साथ, मतलब म्यूजिक अच्छा है तो मतलब आपका जो दिन भी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं हम अपने एस्टैब्लिशिंग शॉट से शिफ्ट होते हैं अपने स्ट्रीट पे। स्ट्रीट के बाद यहाँ पे जैसे the girl is writing or typing something on her particular laptop, and it looks like, just because एक music ad हमने किया है, that is very much joyful, that is very much cheerful, it looks like that they both are chatting with each other, and it could be any kind of chatting, like हो सकता है कि they might be friends, they might be liking each other, and this is how they actually start their day, by writing to each other, right? So that is the emotion which it is generating. अभी यहाँ पे भी ऐसा सच आप देखो, मैंने कोई डायलॉग नहीं ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ एक म्यूजिक ऐड किया है, और हमारे पूरे सीन का जो एक है मीनिंग मिल चुका है। कंपेयर टू जो पहले देखते थे तो हमें कोई एक आइडिया भी नहीं था कि इस पर्टिकुलर सीन में चल क्या रहा है, बस कुछ विजुअल्स हैं जिसको हम फॉलो कर रहे थे, बट स्टिल वी कुडंट लीड एनीवेयर थ्रू दोज विजुअल्स, राइट। बट यहाँ पे जैसे ही म्यूजिक ऐड करते हैं तो हमारा एक अपना ही ट्रैक क्रिएट हो जाता है, राइट। सो इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, राइट, अब मैं इस पर्टिकुलर सीन में कोई चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, कोई ना कट ऐड करेंगे, ना कोई ट्रांजिशन, ना कुछ भी नहीं। मैं सिंपली अपने वीडियो क्लिप्स जो हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं उनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, राइट। सो एज सच अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, कोई कटिंग वगैरह नहीं की। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देता हूँ, राइट। इस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी हम सुनते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ, कटिंग, राइट, ओके, कंट्रोल के, देन चलो पहले इतना हम सुनते हैं। राइट, इसको यहाँ तक ट्रिम करते हैं। एंड इसी पे थोड़ा और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक साउंड इफेक्ट यूज करता हूँ, क्लॉक टिकिंग का। लेट्स ऐड इट टू इट। अब इस पर्टिकुलर क्लिप में, राइट, हमने कोई कटिंग नहीं ऐड की, ना हमने अपने क्लिप की प्लेसमेंट चेंज की है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है, अलोंग विद दैट एक साउंड इफेक्ट यूज किया है क्लॉक टिकिंग का। एंड अब आप देख सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अपनी पहले प्रीवियस क्लिप को देखते हैं तो वहां हमें थोड़ा दोबारा क्लैरिटी ज्यादा होगी। अब हम अपनी न्यू क्लिप को देखते हैं कि जिसमें हमने जो न्यू ट्रैक्स ऐड की उससे हमारे विजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
राइट। अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रिप्लेस करने से, ठीक है, मेरे जो पूरे के पूरे सीन का मतलब ही चेंज हो चुका है। अगर हम पुरानी क्लिप को देखेंगे, इन दैट पर्टिकुलर सीन what we are getting, that we are getting a very joyful, we are getting very cheerful kind of emotion out of it. But if I look at the new clip which we have generated just by replacing the audio tracks, what we can see is that अभी यहाँ पे कुछ तो suspicious लग रहा है. I'm not clear that what is happening, but there is something wrong in this particular scene, right? Because the track which we have added along with the sound effect, अभी सिंगल साउंड इफेक्ट हमने ऐड किया और उसके अलावा और कुछ नहीं, वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि that something is suspicious, right? Whether the girl which is writing something to that particular guy, right? Maybe they are sharing something confidential, they are discussing about something very much serious, right? Just by changing the tracks, आप देख सकते हो कि हमारे पूरा का पूरा जो इमोशन है वो कैसे चेंज हो चुका है इस पर्टिकुलर सीन में, राइट? सो दैट इज हाउ पावरफुल योर साउंड इज. अगर आपके पर्टिकुलर वीडियो में से अगर मैं साउंड्स को रिमूव करना शुरू कर दूं या फिर उसको रिप्लेस करना शुरू कर दूं, देन हम कंप्लीटली अपने जो वीडियो में से इमोशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट? अब इसी में फॉर एग्जाम्पल अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अगेन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल द क्लिप्स. आफ्टर दैट लेट मी डुप्लीकेट इट, राइट? ओके. अब यहाँ पे आई विल ट्राई टू ऐड सम अनदर ट्रैक एंड इसको हम जरा सुनते हैं. सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक ऐड किया है तो उससे हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो अभी आप इस पर्टिकुलर ट्रैक को अगर हम सुनते हैं, राइट, तो अगेन जस्ट बाय चेंजिंग द ट्रैक हम कैसे अपने सीन का इमोशन चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे इन द वेरी फर्स्ट क्लिप हमने क्या किया, वहां पे एक बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही जॉयफुल म्यूजिक ऐड करके बहुत ही अपना एनर्जेटिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया. कंपैरेटिवली जो सेकंड सीन हमने ऐड ऑन किया, सेम सीन में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने जो क्लिप्स हैं उनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट नहीं किया. क्लिप्स को हमने एक्चुअल में अपने ऑडियो ट्रैक्स को मैनिपुलेट किया, राइट? तो ऑडियो ट्रैक्स को एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि सेकंड क्लिप में बहुत ही इंटेंस सा माहौल बन चुका था, बहुत ही सस्पिशियस, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, आर दे इवन द राइट पर्सन, राइट? हमें बीच में ऐसा विलन टाइप भी फील आ रही थी कि कहीं ये गलत लोग तो नहीं है, दैट व्हाट दे आर डिस्कसिंग, लीकिंग सम वेरी कॉन्फिडेंशियल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? एंड थर्ड सीन आप देखोगे, जो थर्ड हमने यहाँ पे सीन ऐड ऑन किया है, in that particular scene we have just added a single kind of music which is quite depressing, which is quite sad, and through that particular music only the whole emotion of that particular scene has been changed, right? नाउ इसी में इसको एक बार दोबारा सुनते हैं एंड लेट्स सी कि हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी हियर इट आउट अगेन. राइट, अब यहाँ पे मैं एक न्यू काइंड ऑफ ऑडियो ऐड करूंगा. Right, okay, great. In the very beginning only, I will add one more sound effect. It is related to the, अब हम एक बार इसको यहाँ पे सुन लेते हैं अच्छे से. अब यहाँ पे मैं एक एम्बुलेंस की साउंड इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो इसको हम एक बार सुन लेते हैं पहले.
तो इस पर्टिकुलर साउंड क्लिप को हम इतना ट्रिम कर लेते हैं जितना मेरा फर्स्ट शॉट है। आफ्टर दैट जैसे हमने राइट, अब यहाँ पे इसी साउंड को हम कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लिप तक एंड धीरे धीरे इसको फेड आउट कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, पी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू ऐड अ की फ्रेम हेयर। राइट नाउ अभी जो प्रॉपर्टी आपको शो हो रही है दैट इज रिलेटेड टू योर वॉल्यूम। So what we can do is simply add a keyframe here, add another one, adjust the volume। अब यहाँ से इसको select करके नीचे की तरफ drag करेंगे। Then let's press Ctrl and add some curves to this particular handle। Now let's listen to the audio। Again इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं so that कि gradually fade out हो जाए। Okay, so now let's see कि just by adding an ambulance sound हमारे इस पर्टिकुलर सीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, so to do that again इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से एक प्लेबैक लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि यहाँ पे अब किस टाइप का इमोशन जनरेट हो रहा है। तो लेट्स प्ले द फुटेज। That was so just by adding the sound of an ambulance, right? हमारे सीन में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड ऑन किया था दैट particular music was already very much depressing, but after adding the ambulance sound, right, हमारे उस पर्टिकुलर सीन में और ज्यादा डेप्थ ऐड ऑन हो गई है। राइट, सो जस्ट बाय एडिंग द साउंड ऑफ एन एम्बुलेंस we can see that in this particular scene it is depicting like that something wrong has happened recently। the sound of the ambulance, because एम्बुलेंस की साउंड जो रहती है वो कभी भी आपको किसी अच्छे इवेंट में नहीं सुनने को मिलती। You always hear this particular sound when something wrong is happened, right? Even in the streets or nearby you, whenever you're going to hear this particular sound, it tells you that something is not right. So, same, the sound of the ambulance, which is used at the very starting of the clip, is letting us know that something wrong has happened recently, and maybe the girl is depressed due to that particular event only। So this is how it is letting us know that something wrong has happened to that particular girl, and she is discussing with his her friend, and maybe her friend is trying to console her, is trying to calm her, right? तो एक बारी फिर से हम इसको रिव्यू लेते हैं, लेट्स सी। So it looks like she's going through some kind of trauma or some she's really depressed with the incident recently, whatever has happened। So this is how powerful and how impactful your sound designing can be। Now you can see हमने same sequence को copy paste किया। We have not changed the clips, we have not rearranged those particular clips, we have not added any other type of cut in between, right?
सेम क्लिप्स हैं, सेम प्लेसमेंट ऑर्डर है, सेम कट्स हैं, कहीं पे भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर हमने कुछ चेंज किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑडियो ट्रैक्स। कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोज के साथ एक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाले हैं अपने पर्टिकुलर सीन के। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट साउंड डिजाइनिंग इज। अगर आप साउंड डिजाइनिंग बेटर कर सकते हो अपनी, राइट, देन आप अपने ऑडियंस को कुछ भी मैसेज कन्वे कर सकते हो। आप अपने ऑडियंस में किसी भी तरह का जो इमोशन है वो प्रिवोक करवा सकते हो, राइट। सो साउंड डिजाइनिंग अपने में बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप साउंड डिजाइनिंग अच्छे से सीख लेते हो, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट if your particular shot was not taken properly, or if there is less emotion in that particular shot, then you can cover up that particular mistake by simply adding sound design, राइट। अपने ऑडियो क्लिप्स को अपने डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बीजीएम्स, वॉइस ओवर के थ्रू आप अपने सीन में और ज्यादा डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको साउंड डिजाइनिंग प्रॉपरली आती है तो, राइट। पर्टिकुलर जो क्लिप्स हमने ऐड किए हैं उसमें ऐसे चलो जो फर्स्ट टू क्लिप्स हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर लोकेशन ओनली, तो वी कांट चेंज एनीथिंग इन दैट, राइट। बट if you look at the other clips, right, where the girl is, right, typing on her particular laptop and the guy is looking at his laptop, right, so again आप देखोगे कि सीन वही है, क्लिप्स वही है, इवन कि देयर इज नो चेंज इन द इमोशन, राइट, बिकॉज क्लिप सेम है तो आप उनके एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर लोगे, राइट। तीनों क्लिप्स में, तीनों सीन में आप देख सकते हो एक्सप्रेशन सेम है, बट जस्ट बाय रिप्लेसिंग द ऑडियो हम कैसे उनका इमोशन चेंज कर रहे हैं हर बार, राइट। कुछ भी इंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, कभी बहुत जॉयफुल मूड में हम लेके जा रहे हैं अपने सीन को, कभी उसको उतना ही सैड कर रहे हैं, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप अपने ऑडियंस तक क्या मैसेज लेके जाना चाहते हो। सो जो भी आपके सीन का इमोशन है आप उसको 10 टाइम इंक्रीज कर सकते हो बाय जस्ट एडिंग सम ऑडियो क्लिप्स इन इट। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास किस किस टाइप की ऑडियो क्लिप्स रहती हैं। लाइक वी हैव द वॉइस ओवर और द डायलॉग्स, वी हैव द बैकग्राउंड म्यूजिक, वी हैव द फॉले। फॉले का भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। मूवी सीन्स में फॉले बहुत सारा यूज होता है डे टू डे में। जितनी भी मूवीज बनती हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें फॉले ना ऐड होता हो। फॉले अपने में बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है which we will discuss in maybe some other course, right? But if you get into this particular art now, you can create wonders in your particular scene. You can add emotion, you can add more depth into your scene. आप जितना अपने वीडियो में साउंड ऐड करते जाओगे, जितनी आप उसमें डिटेलिंग ऐड करते जाओगे, उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट वो आपके वीडियो में ऐड ऑन करता रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने किया कि तीन अलग सीन्स में तीन अलग टाइप के ऑडियोज के थ्रू हमने क्या कर दिया कि अपने इमोशंस हैं वो चेंज कर दिए। इवन कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लिप में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं भी लगाता, and if I choose to just add a voiceover, then also I could change the whole emotion of that particular scene. That totally depends that what dialogue or what message I'm speaking in that particular voiceover, right? So मेरे वॉइस ओवर के थ्रू भी मैं अपना जो इमोशन है वो चेंज करवा सकता हूँ। अगेन डिपेंड करता है कि मैं वॉइस ओवर भी क्या लिखा है हमने, प्लस किस टोन में बोला जा रहा है, राइट। अगर कुछ इंटेंस सीन है तो इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए मैं हो सकता है कि बहुत ही अपने एक हैवी बेस के साथ कोई एक वॉइस चूज करूं जो मेरे इस पर्टिकुलर सीन को और ज्यादा इंटेंस कर दे, राइट। सो that is why sound designing is very much important in video editing process. You cannot skip this part and you cannot imagine your particular video without sound design. So hope so you all get the basic concept of sound designing, what is sound design and how it can create an impact on your video. So
That was all for today's session. See you guys in the next class.